Let's quickly take our viewers to how this journey really unfolded for Prashant Kishore. For those of you who may not be aware of where this all started, let's quickly put this out for our viewers as well. In 2021, viewers, a decision was taken by Prashant Kishore to enter electoral politics after Mamata Banerjee's West Bengal victory. However, he had been much before that, he had been giving a lot of critical advice to many political parties, and he was seen as the mind behind several critical political victories in India's recent electoral politics. But in 2021, he decided to enter electoral politics himself. In 2022, he launched the Jan Swaraj Abhiyan, which is People's Good Governance campaign. So he wanted it to be a grassroots movement to begin with. In 2022, he launches his party. In the same year, in October, he started his 3,500 plus kilometer Pad Yatra from Gandhi Ashram in West Champaran, and he goes all over several critical areas in this. Prashant Kishore then converted the Jan Swaraj party in October 2024. So he takes 1 year to do the Jan Pad Yatra, and then he converts the JSP into a full-fledged political party. In November of 2024, Jan Swaraj makes its electoral debut in 4 by-poll constituencies. In May 2025, Uday Singh is elected as the Jan Swaraj party's first national president. In October 2025, Prashant Kishore opts out of contesting Bihar elections in that year. In November of 2025, JSP has unveiled the Naya Bharat Naya Bihar manifesto. So while he opted out himself from contesting elections, he was being viewed as one of the key disruptors in Bihar politics as of last year. And his focus was 20 lakh jobs by 2030. He raised the old age pension also to 2,000 rupees. In November 2025, Jan Swaraj contested all 238 seats in Bihar, but they failed to win even a single seat. And all Prashant Kishore's party secured was a 3.44% vote share. And of course, cut to today, Prashant Kishore has entered electoral politics himself. He's made his debut with Bankipore, which is a BJP bastion since the 1990s, and he has managed to win that bastion today. So Prashant Kishore will be entering the Bihar Assembly officially as an MLA very soon. My colleague Ritesh with us on the broadcast. Ritesh, take our viewers through the details. What really is the atmosphere like on the ground? Ritesh, what are the statements that are coming out from Prashant Kishore's party, from his supporters? What are they saying? अब बिल्कुल देखिए कि मैं तो काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं और प्रशांत किशोर अभी काउंटिंग सेंटर से निकल रहे हैं। जो जरूरी कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी करने के बाद वो यहां से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप देखिए कि 2025 में किस तरीके से जो पार्टी है इनकी पूरे बिहार में इन्होंने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन शून्य पर आउट हो गए थे। और उसमें ये जीत जो है ये संजीवनी की समान है, क्योंकि अगर ये चुनाव प्रशांत किशोर नहीं जीत पाते तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, जिस तरह से विक्ट्री दिखाई दे रही है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर रियली बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और देखिए कि यहाँ पर वो मौजूद हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में उनके जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं। प्रशांत किशोर देखिए कि यहाँ जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर वो खड़े हो गए हैं और वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी बेहद खुश हैं, वो उनके चेहरे से वो उनकी फीलिंग हम समझ सकते हैं कि 2025 में किस तरीके से जब वो हाशिए पर आ गए थे तो विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू किया। इस चुनाव में भी बीजेपी के लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर का अस्तित्व क्या है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी के लोगों ने इतना तक कह दिया कि हम तो किसी कुत्ते बिल्ली को खड़ा करेंगे, वो चुनाव जीत सकता है।
लेकिन जनता देखिए कि लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन होती है और जनता ने बीजेपी को दिखा दिया कि आप भले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन जनता से ऊपर आप नहीं हैं। जनता में जो अपील प्रशांत किशोर ने किया था वो जनता ने कनेक्ट किया, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, वो करप्शन का मामला हो, वो इलाके के डेवलपमेंट का मामला हो या अन्य मुद्दों से उन्होंने जनता को कनेक्ट किया और यही कारण है कि जनता उनसे पूरी तरीके से कनेक्ट हुई और जनता ने उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, नितिन नवीन की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बॉस बताते हैं, और उस सीट पर अगर प्रशांत किशोर की जीत होती है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत यहां पर झोंकी थी, 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक थे, एक एक बूथ पर एक एक मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और उसमें अगर प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो जाहिर सी बात है कि ये अप्रिसिएबल है और ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की जनता का मूड क्या है और आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक भविष्य क्या है। जी All right, Ritesh, is it possible to talk to some people there, to some of Prashant Kishore's supporters and understand from them as well what is it that they are feeling at this point in time? बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे साथ प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग मौजूद हैं। आप भी पीके के पार्टी से हैं, ये बताइए कि जीत को लेकर क्या कहेंगे? ये जीत प्रशांत किशोर के उसका चरित्र पर हुआ है और हम लोग प्रशांत किशोर को जिताने के लिए मतलब कि सारी ताकत लगा दी है बस। तो देखिए कि इन्होंने सारी ताकत लगा दी। आप भी पीके की ही पार्टी से हैं, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, क्या कुछ कहेंगे और भविष्य की राजनीति कैसे देख रहे हैं? ये जीत एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। बिहार की जनता एक बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर आज उन्होंने किया है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को एक बड़े मार्जिन से वोट दे करके वर्तमान की स्थिति में जो पार्टियां हैं वो एक आप कह सकते हैं कि न वो लड़कों को रोजगार दे रही है, ना आपको किसानों को कमाई दे रही है और न किसी रोगी को दवाई की व्यवस्था करा रही है। उसको लेकर के आदरणीय प्रशांत किशोर ने हुंकार भरा और जनता इनके साथ है। Mr. Hari Sari, former LLP